specialization in entrepreneurship his primary research area. Alongside commerce subject, he teaches business communication, personality development, and interdisciplinary courses aimed at the students' holistic growth. Known for his student-centric approach, Dr. Khan is often invited as a resource person for various workshops, and I find Dr. Saim almost in most of the workshops that are there for personality development, communication skills, and also in certain training programs on communication skills, public speaking, interview techniques, and digital and social media marketing. Apart from this, I tell you that SIM has been, very strong resource person, dedicated resource person to the SURE program also, which I am running. In fact, his session is tomorrow morning on Sunday on communication that is required for the businesses and startups. So you have a very I think all of you must take full advantage of the session. And Dr. Saim, the board is all yours. I think now you can start your session. Okay, thank you very much, ma'am, for the introduction and all the lovely words you have said about me. Saim, I think it's really great for all of you that amidst all the hectic schedule with your teaching and classes, you all have agreed to spare your time and share your knowledge with all of us. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. I'll call all my colleagues, the participant, because I'm also feeling like a participant in the program, rather than we'll be discussing things, okay? So in the very beginning, I just want to set the tone that we'll be discussing, and I'll be sharing some like little snippets and questions with you guys. So थोड़ा सा discuss करते चलेंगे. हम सारे के सारे एक ही कश्ती में एक ही नाव में सवार हैं. We are almost on the same platform. So without any further delay, I think it's time we should start this session. So as you all know, ये पूरा जो हमारे fresher course है, it's about entrepreneurship. और मुझे जो session दिया गया है, it's about the requirement of communication for entrepreneurs. Right? Entrepreneurship में entrepreneurs के लिए communication किन steps पर कैसे जरूरी हो जाता है, वो चीजें हम इसमें discuss करेंगे. I think you all are teaching for a very long period of time. You must have studied and taught communication at like various levels. Like हर जगह business communication पढ़ाया जा रहा है, communication का as a paper पढ़ाया जा रहा है, तो आप सबका कभी ना कभी इससे वास्ता जरूर पढ़ा होगा. But थोड़ा सा हमारा light different है इस वक्त. The light in which we are seeing communication today is a little bit different. हम लोग बात करते हैं usually about managerial communication. और perspectives अलग-अलग होते हैं. I think you all agree with me. जो लोग पढ़ चुके हैं इसको या सब्जेक्ट पढ़ा चुके हैं. Yes, तो हमारा exactly हमारा जो perspective रहेगा, it will be about, okay, for example, I'm starting up a business or you are starting up a business. So आपको communication कितना जरूरी है? So without any further ado, I think let me share my screen with you people. Let me know if it's visible to all of you, right? I'm sharing it with you all. yes. Just a second. सबका हो गया है, सब हो जाओ. Okay, is it visible to all of you? Yes, sir. Visible now. Yes, sir. Screen is visible now. Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you very much. So I want to set the tone from the very beginning. तो मेरा जो presentation है, मुझे लगा कि आप लोग monotonous और generic presentations देख कर थोड़ा बोर हो गए होंगे.
So I have tried to make it a little kind of entertaining and little bit childish, जैसा students बनाते हैं. So नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही. start रहे हैं. वो things होते हैं. कुछ एक विषय होता है. एक विषय है. multiple come to a common ground. Like what is established business things and so on उस केस में लैंग्वेज में के चलते हैं. तो ज्यादातर जो हमारे स्टार्टअप्स होते हैं वो सब हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं. तो before we dive into today's session, let me ask you a simple, very powerful के सामने. You think is the best reason startups fail? Take a moment, imagine a startup. Yeah, wasn't good Connectivity enough problem, because sir, the from founders your are side. Excuse me, sir, your voice is breaking. what okay, just a second, let me check. सर आवाज नहीं आ रही है.
You are not audible, sir. सर आवाज नहीं आ रही है। सर कनेक्टेड ही नहीं है सर, है नहीं। डिस्कनेक्ट हो गए हैं सर। अरे सर MCQ क्वेश्चन आज ही होंगे क्या? सही सर। आवाज नहीं आ रहा है सर, शायद डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हैं शायद सर, और जी उनकी साइड से इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद। Yeah, am I audible now? यस सर, यस सर। यस So सर। sorry, Yes, actually sir. the internet broke Yes, down sir. and my phone networks were not working at all. So I have to quickly fix that. So apologies for the inconvenience caused. No So, mention sir। okay, thank you very much. We will continue from where we have left. Okay, so yeah, I was just discussing with you that before we dive into today's session, let me ask you a simple but very powerful question. What do you think is the biggest reason startup fail? Is it just take a moment, imagine a startup you know or have read about. Why do you think it didn't succeed? Was it because the idea wasn't good enough? या फिर founders के पास पैसा खत्म हो गया था या or was it something else? आप लोगों का क्या कहना है? Just think about it and quickly respond. दो चार लोग बताएं. Did not meet the requirement of the market. Did not meet with the requirement of the market. Okay. Anyone else? डिमांड एंड सप्लाई। Could not satisfy the customer, sir. Couldn't satisfy the customers. Yes, and डिमांड एंड सप्लाई। demand and supply issues were there. Okay.
Okay. Interesting perspectives. Okay, so most people, including entrepreneurs, खुद initially believe कि money या फिर weak idea जो है, that is the main reason for a failure of any startup. But research, it shows us something different. Let me share with you a quick stat. So CB Insight एक private company है. तो according to the CB Insights startup failure report, nearly 65 to 70% of startups, they fail not just because of bad ideas or lack of funds, but because of poor communication and misalignment with stakeholders. Yes, मतलब this is a little shocking actually, but ये सच्चाई है ये, है नहीं? So think about it actually. Investors often say we don't invest in ideas, we invest in founders. तो यहाँ पर वो basically वो कहना क्या चाहते हैं that they invest in founders who can communicate their vision बहुत साफ और persuasively. आपका vision आप जितने clearly और persuasion के साथ सामने रख सकते हो investors के, वो उस idea को खरीद लेते हैं. So you could have the best idea in the world, right? But if you cannot explain it convincingly to an investor, या फिर you cannot motivate your team, जो आपकी core team है जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, you could not motivate your team to execute it. और जैसे भी customers की बात आई थी, you could not persuade customers to try it, you won't survive. ठीक है? So communication is not just a soft skill for entrepreneurs. It's basically a core survival skill. कैसे है अभी हम इन चीजों को ही डिस्कस करेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में. So now let's set the stage for today's theme by clarifying an important distinction. जैसे मैंने शुरू में कहा था कि difference between managerial communication and entrepreneurial communication. Okay. So managerial communication वो है जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं, जानते हैं, ठीक है? It happens mostly in established organization. जैसे क्या कहते हैं, it's about coordination, it's about reporting, maintaining order. Example, simple सा example है, a manager sending weekly progress reports or holding a meeting to track deadlines. अच्छा, tone कैसी होती है? आप देखा है सबने, tone is formal, it's process driven and it's focused on efficiency. ये होता है हमारा managerial communication, right? But coming to entrepreneurial communication, this is a very different ball game altogether. Because देखिए होता क्या है कि entrepreneurs they operate in uncertainty. चीजें sure नहीं होती हैं, certain नहीं होती हैं. They don't have established structures या secure resources नहीं है, ना ही उनके पास कोई ready customer base है, right? Therefore, their communication must be strategic. उसके साथ साथ persuasive भी होना चाहिए और इंस्पिरेशनल भी होना चाहिए. इस एग्जांपल के तौर पर एक स्टार्टअप फाउंडर है, सो ही इज पिचिंग अ हाफ बिल्ट प्रोडक्ट टू इन्वेस्टर्स, या फिर किसी टैलेंटेड इंजीनियर को कन्विंस कर रहा है कि लोअर पे पे ज्वाइन करना, या फिर कस्टमर्स को परसुएड करना टू ट्रस्ट अ न्यू और अनटेस्टेड सर्विस. तो आई थिंक मैनेजरियल कम्युनिकेशन और एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिकेशन में डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. So in short, I would say that managerial communication is to maintain stability. कोई भी manager है वो क्यों communicate कर रहा है? To maintain stability. And entrepreneurs communicate to create possibilities. इसको एकदम छोटे में हम कहें तो ये difference है managerial communication में और entrepreneurial communication. ठीक है? And this is where the real challenge actually lies. Entrepreneurs need to influence without having the resources or powers that managers usually have. Managers के पास तो resources हैं, power है, organized structure है, ये सारी चीजें किसी भी entrepreneur के पास या जो नया startup लेकर आ रहा है उसके पास नहीं होती. So that is why entrepreneurial communication इतना ज़्यादा जरूरी है, इसके skills को सीखना. So कहीं ना कहीं हम सब मानते हैं कि these things are kind of inbuilt. बट जितना आप प्रैक्टिस में लाते हैं, इन चीजों को समझते हैं, उतने ही स्किल्स हमारे ब्रश अप होते चले जाते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन फॉर एंटरप्रेन्योर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स. वी आर टॉकिंग अबाउट
how to use communication, how to use it as a strategic tool for building trust, persuading stakeholders and shaping opportunities. I think मेरी आवाज आप लोगों को साफ आ रही है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Please let me know. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much. हम थोड़ा सा आगे बढ़कर अब बात करते हैं सीधा सीधा द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, entrepreneurs are often called chief visionaries या फिर chief innovators. But in reality, every entrepreneur is also a chief communicator of his or her venture. Why? Because before the product is ready, before the company is profitable, and even often even before funding arrives, the only thing the entrepreneur really has is his or her ability to communicate a dream and make others believe in it. एक ड्रीम है, I have to communicate it, और मुझे क्या करना है कि आपको भरोसा भी दिलाना है, ये हो सकता है, ये हम कर सकते हैं. तो in a startup हम कह रहे हैं कि why entrepreneurs are chief communicators. So in a startup they are usually no marketing department, आप सब agree करेंगे, no PR team and no investor relation office. तो ये सारे हैट किसको पहनना है? ये सारे के सारे हैट एंटरप्रेन्योर को पहनना है. He must wear all these hats. ये एंटरप्रेन्योर को ही पिच करना है आइडियाज इन्वेस्टर्स को, कन्विंस करना है कस्टमर को टू ट्राई समथिंग न्यू, और he has to inspire employees to join a risky journey with limited resources. Obviously it's risky क्योंकि established नहीं है अभी. इसी को negotiate करना है पार्टनर्स के साथ for collaboration and resources, and regulators को handle भी करना है by explaining different compliances and credibility. ठीक है, अभी यहाँ पर एक छोटा सा illustrative example मैं कोट करना चाहूंगा. Airbnb का नाम आप सभी ने सुना है, आज की डेट में ग्लोबली बहुत फेमस है, उस पर बेस्ड कई सारे मॉडल फिर आना शुरू हुए. तो थिंक ऑफ Airbnb's early days when the founder they first tried to raise funds, they were rejected by most investors. क्यों? Because this idea of renting a stranger's home, it sounded absurd to people. The investors couldn't buy into it. But ये लोग जो थे Airbnb वाले, what kept them alive was their relentless communication. उनका storytelling, उनका pitching और उनका persuading. ठीक है, until they finally convinced investors that people crave authentic travel experiences. लोग ढूंढ रहे हैं ये चीजें basically. So with their persuasion, with their pitching and the style of storytelling, उन्होंने कहा कि convince करके ही मानो. So this is what kept them alive. It was actually their communication. So an entrepreneur is not just building a product, actually they are building a belief through communication. अच्छा, रोल की बात कर ही रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. तो कम्युनिकेशन का मेजर रोल है इस स्टेक होल्डर वेब को समझाना. जैसे इन्वेस्टर्स हैं हमारे पहले, तो इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? इन्वेस्टर वांट क्लैरिटी, दे वांट नंबर्स, दे वांट विजन, they want credibility. So for example, in an investor pitch, entrepreneurs must communicate growth potential with both passion and data. Data भी चाहिए साथ साथ. अच्छा, दूसरे स्टेक होल्डर हमारे जैसे कस्टमर हैं, उन्हें क्या चाहिए? They want to know why should I buy this? How does it solve my problem? ये communicate करना. So entrepreneurs must speak the language of value and benefit, not technical jargon. तो jargon आपके customer के समझ में नहीं आएगी. इसके examples हम लोग थोड़ा सा आगे चल के discuss करेंगे. अभी पहले ये stakeholders को एक-एक करके discuss कर लेते हैं. Then you have employees and you have co-founders. The employees they need motivation, vision, reassurance, obviously. तो यहाँ पर communication क्या है? Communication यहाँ build करता है लॉयल्टी और कल्चर, दोनों चीजें. ठीक है, जैसे एलॉन मस्क की कम्युनिकेशन कैसा होता है आप सब वाकिफ हैं, काफी उसके ट्वीट्स वगैरह फेमस होते हैं. तो वो अपने कम्युनिकेशन में क्या कर रहा है? वो अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है. ठीक है, और एक विजन है कि उसको टीम को आगे लेकर के चलना है. अच्छा, कभी कभी ये चीजें कंट्रोवर्शियल भी हो जाती हैं, उसके कई सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं,
बट दैट इज वन स्टाइल एक्चुअली जिससे वो अपना कल्चर कम्युनिकेट करता है अपने सारे कोवर्कर्स के साथ या एम्प्लॉइज के साथ एक्सेट्रा। सिमिलरली देख सकते हैं आप स्टेक होल्डर्स में हमारे रेगुलेटर्स होते हैं। तो रेगुलेटर्स को क्या चाहिए? दे नीड कंप्लायंस, उन्हें क्लैरिटी चाहिए, उनको ऑनेस्टी चाहिए, ठीक है। और लास्टली वी हैव सब पार्टनर्स और सप्लायर्स, वो भी आपसे ट्रस्ट और प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हियर लीड्स टू लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन। अब हम बात करते हैं कि हाउ कम्युनिकेशन शेप्स ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी एंड इन्फ्लुएंस। सो ट्रस्ट की बात करें तो स्टार्टअप्स ऑपरेट इन अनसर्टेनिटी, जैसे हमने अभी आपको शुरू में डिस्कस किया था, बताया था। तो ट्रस्ट यहाँ पे करेंसी है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स है, आप सबने नाम सुना होगा किकस्टार्टर वगैरह का या इंडीगोगो। दे थ्राइव बिकॉज फाउंडर्स कम्युनिकेट ट्रांसपेरेंटली विद बैकअप्स। ट्रांसपेरेंसी रखी इसलिए वो चल गए और चल पड़े, ठीक है। इसी के साथ आपको कम्युनिकेशन क्या करता है? क्रेडिबिलिटी को भी शेप करता है। तो अ फाउंडर्स कम्युनिकेशन स्टाइल बेसिकली determines whether stakeholders take them seriously or not. ओवर प्रॉमिसिंग और या फिर अंडर डिलीवरिंग, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है कि आपने बहुत ज्यादा वादा कर दिया और फिर आप उसको डिलीवर ही नहीं करता। व्हाइल कंसिस्टेंट ऑनेस्ट कम्युनिकेशन इट बिल्ड्स। तो हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी इसमें की है। और सिमिलरली इन्फ्लुएंस को शेप करता है कम्युनिकेशन। So entrepreneurs need to persuade people without authority. Obviously, they cannot order investors to give money. या कस्टमर को जबरदस्ती जाकर के buy, you have to try this new product. No, they must influence through vision and words. ठीक है। So for example, Steve Jobs को आप सब जानते हैं, एप्पल को कहां से कहां पहुंचाया। तो Steve Jobs was a master influence, right? His product launches were communication performances that shaped global demand. और जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसने आईफोन को, मैक को कहां से कहां पहुंचा दिया है, ये सबके सामने एग्जाम्पल के तौर पे मौजूद है। एंड विद इन अ शॉर्ट व्हाइल वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट एप्पल एंड हिज विजन मोर। तो टू सम अप, communication is not an accessory skill for entrepreneurs. It is the very foundation on which trust, credibility and influence are built. Every conversation an entrepreneur has, चाहे वो investors के साथ हो, चाहे customers के साथ हो, चाहे employees के साथ हो, it shapes the future of the venture. जो भी venture वो चला रहा है उसका future यहीं से shape हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं काफी बोल लिया हूँ, आई थिंक थोड़ा सा अब आपके सामने एक छोटी सी सिचुएशन है। ओके, I would like to ask you कि if you were starting a new edtech company, what communication strategy would you use with number A, investors, B, teachers, and C, student or parents? I want you people to think about it a little. थोड़ा सा टाइम लीजिए और जो भी हमने डिस्कशन किया है प्लीज रिस्पॉन्ड। थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन रहेगा तो हम लोग बोर नहीं होंगे। मुझे नहीं लगेगा मैं खाली स्क्रीन को देख रहा हूँ। यस, एनीबॉडी? कोई शेयर करना चाहेगा? Sir, please describe steps of communications. अच्छा, you want me to describe steps of communication or process of communication? Steps in briefly. नॉर्मल कम्युनिकेशन यू आर आस्किंग मी, या फिर आप इस जो हम जिस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे आप उसकी बात कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप की, Related to context. related to context. Okay, sir, the basic process of communication is the same. There is a receiver, there is a sender, there is a message, and there is the source through which you are sending the message. There is encoding, decoding and receiver. जो मैसेज को रिसीव कर रहा है उसको डिकोड कर रहा है, ठीक है। वो तो एक कम्युनिकेशन का सार है या जो बेसिक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में अभी एंटरप्रेन्योरशिप की बात, सॉरी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्यों
कम्युनिकेशन नेसेसरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। तो वही सर हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर कि टूल्स बेसिकली क्या क्या होते हैं और क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने जस्ट इससे पहले डिस्कस किया है, तो हमने रोल डिस्कस किया है, कम्युनिकेशन का रोल क्या होता है। जी सर। अब हम रोल के बाद अब बढ़ेंगे टूल्स की तरफ इसके आगे कि एक्चुअली एक एंटरप्रेन्योर के टूल क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो एज फार एज द स्टेप्स और द प्रोसेस इज कंसर्न, तो यू हैव अ वेरी इन द वेरी बेसिक कम्युनिकेशन में एक सेंडर होगा, एक मैसेज होगा जिसको डिकोड किया जाएगा, एक मीडियम होगा, मैसेज एनकोड होगा, सॉरी डिकोड होगा, और उसके बाद एक रिसीवर होगा और फीडबैक होगा। दीज आर द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ बेसिक कम्युनिकेशन। जी सर। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर। और यहाँ अब जो मैं एक सिचुएशन दी है आपको, तो इफ कोई आप से शेयर करना चाहे इसके बारे में कि एक नई एडटेक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो आप क्या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यूज करेंगे इन्वेस्टर्स के साथ या टीचर्स के साथ या स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ, क्या बताना चाहेंगे उनको? अभी जो हमने डिस्कस किया था अभी अभी उस कॉन्टेक्स्ट में। लीजिए एक आध मिनट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, थिंक अबाउट इट एंड देन कम बैक। Sir, I think, sir, motivation, is a skill motivation is also communication important. strategy for him. सर एक कोई या Sir, motivation is also important to communication. जी जी, इन्वेस्टर से हम किस तरह से बात करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में? अगर हमें जैसे कम्युनिकेट करना है कि मैं एक एडटेक कंपनी, बिकॉज यू ऑल आर टीचर्स, तो इसलिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे एडटेक कंपनी का लिया है। तो मान लीजिए कल को आप अपनी एडटेक कंपनी स्टार्ट करते हैं और आपको इन्वेस्टर से पैसा चाहिए, तो क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे? To develop reports with the investors. You have to develop rapport with the investors. Yeah. Okay. Anything else? बेनिफिट्स एंड स्कोप। बेनिफिट्स एंड स्कोप समझाएंगे आप इन्वेस्टर को उसके पैसे के टर्म्स में, राइट? चलिए, और अच्छा टीचर्स को किस तरह से आप कम्युनिकेट करेंगे? सर टीचर को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा सही। ये बात आप सही कह रहे हैं, टीचर्स को समझाना मुश्किल, पर फिर भी काम तो करना है आपको, एडटेक कंपनी खोलनी है। जी सर। तो टीचर को समझाएंगे कैसे, क्या क्या उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं आप? आप खुद सोचिए कि आप ही अपना एक ऑनलाइन पूरा कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आप क्या विजन दिखाएंगे बेसिकली सर हम टीचर को? तो आप हाँ, यस मैम प्लीज। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, sir, you are audible, sir. am I audible? Okay, ma'am, you were saying something. जी सर, मैं ये कह रही थी हम टीचर को ऑनलाइन इंटरनेट स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज ऑनलाइन ही है और टीचिंग भी एक ऑनलाइन का एक स्टेप हो गया है, तो इसलिए हम ऑनलाइन स्किल डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं। नहीं मैम, वो तो मैम स्किल डेवलपमेंट तो हो गया, आप उसे कन्विंस करना है ना, तो क्या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कि हमारे साथ ज्वाइन कर लो। इससे उनको मतलब अपने स्टूडेंट के बारे में बताने में, मतलब स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हैं, वो अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। एनीवन एल्स कुछ और कोई शेयर करना चाहेगा? सर मॉनेटरी गेन कर सकते हैं इससे, वो ये कहा जाएगा। हाँ, मतलब मॉनेटरी गेन को एज अ विजन समझाना पड़ेगा आपको कि फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्यूचर, कि सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, सारी कोचिंग, तो आप उनको विजन दिखा सकते हैं बेसिक। सर केस स्टडीज के थ्रू समझाया जा सकता है। यस, आप उनको केस स्टडीज के थ्रू समझा सकते हैं, आप दिखा सकते हैं कि ये हो चुका है और इतना इतना लोग कमा रहे हैं ऑलरेडी।
ओके अच्छा, व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, उन्हें कैसे कन्विंस करेंगे, क्या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी लगाएंगे? एनीथिंग कमिंग टू योर माइंड? Objectives of communication. Firstly, for student, या objectives of communication, जी, and then steps and benefits. ओके Process. जी जी सर, इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपको अपनी एक एडटेक कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन कोचिंग या टीचिंग इंस्टीट्यूट आप स्टार्ट करने वाले हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी यूज की जाए स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के साथ, ताकि वो मान जाए और वो आपके यहाँ पढ़ना शुरू कर दें? सर अब वो पूछेगा भाई जी, यस सर कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करवा के स्टूडेंट्स को। ओके, वो पूछेगा आपसे कि मैं फिजिक्स वाला क्यों ना खरीदूं, मैं क्यों आपके पास हूँ, ऑलरेडी इतना एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म है। बेसिकली व्हाट डिफरेंस यू आर मेकिंग, व्हाट न्यू थिंग एक्चुअली यू आर ट्राइंग, किस तरह से आप अलग है कंपटीशन से, वो चीज कम्युनिकेट करना होती है हमें। ठीक है, स्टूडेंट को, इन्वेस्टर्स को वो नंबर दिखाना होता है कि आप आज इन्वेस्ट करोगे, इतनी ग्रोइंग इकोनॉमी है और मैंने पूरा होमवर्क किया है एंड इट विल ग्रो दिस वे। टीचर्स को आप दिखाओगे कि आपकी कितनी ग्रोथ है इसमें। ठीक है, जैसे मैम ने बताया कि केसेस के थ्रू आप दिखा सकते हो कि इतने इतने साल में इतना इतना इसमें चेंज आया है। अगर हम इसको बहुत निष्ठा के साथ काम करते हैं, दिल के साथ काम करते हैं, तो इट विल ग्रो। और स्टूडेंट्स को आप या पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हो कि हाउ योर प्लेटफॉर्म इज बेटर देन लाइक फिजिक्स वाला एंड अदर कॉम्पिटिशंस अवेलेबल इन द मार्केट। वो डिफरेंशिएशन दिखाना होता है कि हम कैसे अलग हैं। तो दीज आर द डिफरेंट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज इस केस में आप यूज करेंगे इन्वेस्टर या टीचर या स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के साथ। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट वी अंडरस्टैंड व्हाई कम्युनिकेशन इज सेंट्रल टू एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, let us move to the first major tool entrepreneurs use to make their communication powerful। पहला टूल जिसको वो यूज करते हैं अपने कम्युनिकेशन को पावरफुल बनाने के लिए, और वो टूल क्या है? वो टूल है स्टोरी टेलिंग। ओके, so people actually they don't buy products, people buy stories, always remember। Okay, so an average product with a great story often beats a great product with a weak story। So in entrepreneurship, storytelling is not entertainment, basically it's a strategic tool। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को एक कंपेलिंग विजन चाहिए ना मूव करने के लिए, और कस्टमर्स वो कनेक्शन फील करना चाहते हैं ब्रांड के साथ, और एम्प्लॉय दे वांट टू रैली बिहाइंड अ मिशन बिगर देन देमसेल्व्स। उनसे बड़ा, खुद से बड़ा एक मिशन जिसके साथ जुड़ना, ये बेसिकली एम्प्लॉइज देखना चाहते हैं। तो इसलिए ये स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक टूल है इन फॉर एनी एंटरप्रेन्योर। अब हम यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल्स कोट करते हैं। देखिए आपके सामने है, अभी हमने डिस्कस किया था एयरबीएनबी को, दोबारा से आते हैं और एयरबीएनबी की स्टोरी को देखते हैं। तो द फाउंडर, जिन्होंने इसको फाउंड किया, ब्रायन चेस्की एंड जो गेबिया, दे वर स्ट्रगलिंग टू पे रेंट इन सैन फ्रांसिस्को। वहां रहते थे और इश्यूज यही थे कि रेंट महंगा है, नहीं हो पा रहा था। तो एक क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढते हैं। क्या किया उन्होंने? कुछ एयर मैट्रेसेस खरीदी, वो जो इन्फ्लेटेबल मैट्रेसेस होते हैं, और दे ऑफर्ड स्ट्रेंजर्स अ प्लेस टू स्लीप। जो बाहर से आया है, जगह नहीं है, उसको उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ यहाँ पर हमारा अपार्टमेंट शेयर कर सकते हैं, और अलोंग विद ब्रेकफास्ट। कोई कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो उसको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल रहा है और सोने की जगह मिल रही है। ये उनका क्रिएटिव सॉल्यूशन। तो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? Yes, they love the affordable and personal experience। तो this simple air bed and breakfast, यही तो Airbnb है, air bed and breakfast, the idea grew into Airbnb। तो किसी भी entrepreneur के लिए इसमें क्या लेसन है कि a personal authentic story makes a startup relatable। ठीक है, investors and customers they connect with the human struggle, यानी जो रेंट प्रॉब्लम थी उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और जो क्रिएटिव सॉल्यूशन आपने उसका दिया, यानी शेयरिंग इकोनॉमी।
ये एयरबीएनबी की स्टोरी थी कि वो कहाँ से शुरू होकर के बेसिकली और किस तरीके से आगे बढ़ गया, कैसे इन्होंने पिच किया एंड ऑल, वो हमने देखा ही। और नाइकी की स्टोरी की बात करें तो नाइकी could have just talked about high quality sports shoes, right? Instead, it builds its brand identity around a bigger idea. Idea क्या लेकर आए लोग? They talked about empowerment and innovation. वो जो स्लोगन आप लोग देखते हैं ना, सूश का साइन बना रहता है, लिखा रहता है just do it. So basically this 3-word story, it tells people कि anyone can achieve greatness if they take action. इसका impact क्या हुआ कि athletes or fitness enthusiasts and even everyday people, they feel personally inspired. So Nike is not just selling rubber and fabric. Okay, Nike क्या बेच रहा है? Nike बेच रहा है confidence, Nike बेच रहा है achievement, Nike बेच रहा है एक lifestyle. ठीक है? तो यहाँ पर lesson क्या है कि a brand story should connect to emotions and aspiration, not just the product. और आप देखते होंगे आप लोग कि बहुत चेंज एडवर्टीजमेंट के स्ट्रक्चर में भी अब आ गया है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पूरे एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट पर फोकस ना होकर एक ह्यूमन लाइफ पर फोकस है कि हाउ दिस, उसका इस्तेमाल वो कहाँ कहाँ कर रहा है या कर रही है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एप्पल्स स्टोरी। सो व्हेन स्टीव जॉब जब वापस आता है वो एप्पल में इन द लेट 1990s, he reshaped Apple's story. ठीक है, पूरी कहानी बदली। कैसे? It wasn't about better processor or storage. ठीक है, it was about creativity. It was about simplicity. It was about rebellion actually. तो इसने क्या किया? Apple ने, Apple positioned itself as a brand for rebels, as a brand for dreamers जो सपना देखने वाले हैं, and as a brand for innovators. Okay. And उससे क्या हुआ कि how people started to feel, they felt that if you are owning at an Apple product, तो क्या है कि आप उस movement का part बन गए। You are not just buying a machine actually, you are becoming part of a movement. तो इसका impact क्या होता है कि Apple became iconic because people felt an identity connection. Okay, customers, they just didn't want a computer, they wanted to belong to the Apple story. और उसका इम्पैक्ट आप सब अपनी आंखों से देख रहे हैं ग्लोबली, कैसे एप्पल ने पूरे मार्केट को डोमिनेट किया। यानी एवरीबॉडी हु इज बाइंग एन एप्पल्स आईफोन, आप देखेंगे मोर देन 90% ऑफ पीपल, दे डोंट केयर अबाउट द फीचर्स दे आर ऑफरिंग, क्या क्वालिटी, सब सेकेंडरी है उनके लिए प्राइमरी ये है कि दे आर पार्ट ऑफ द एप्पल फैमिली, राइट? सो yeah, this is how stories actually work. So storytelling can turn a product into a movement. When you tell people they are different, special, or part of a bigger cause, loyalty, it grows stronger. Okay, so ये जो तीन हमने stories discuss की, so all these 3 stories show that customer, they just don't buy what you sell, they buy why you sell it, क्यों बेच रहे हो। The Airbnb, this Nike, combine 3 things: problem, emotion, and vision. और किस तरीके से? in a way that people can relate to. मैं फिर रिपीट करूंगा, इन्होंने 3 चीजें कंबाइन करी: प्रॉब्लम, इमोशन एंड विजन, in a way that people can relate to. Fine, I think ये स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगी होंगी आपको। मेरी आवाज आ रही है ना सबके पास? यस सर, आ रही। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टोरी टेलिंग को ही आगे डिस्कस करते हैं और फ्रेमवर्क जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। तो दिस इज अ सिंपल फ्रेमवर्क जो सारे एंटरप्रेन्योर्स यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट विद अ पेन पॉइंट। पेन पॉइंट मतलब प्रॉब्लम, ठीक है? जैसे कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ अर्बन रेसिडेंट्स, दे डोंट हैव एक्सेस टू फ्रेश केमिकल फ्री वेजिटेबल्स, नहीं है उनके पास। देन कम टू द सॉल्यूशन। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इंट्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट और द सर्विस एज द आंसर कि ये सॉल्यूशन। इस एग्जांपल हमने यहाँ दिया कि किस तरीके से
we build a digital marketplace connecting local organic farmers directly with city consumers. This is the solution you are offering. And then end with the bigger purpose for a long-term dream, जिसको हम vision कहते हैं. तो यहाँ पर आप vision किस तरह show करेंगे कि our vision is to transform how India eats healthier food, fair income for farmers, and sustainable agriculture. Right, so you have a problem, then you're providing solution imbibed with emotions, and you are also talking about the larger vision basically. Okay, this is a framework, जो basics of framework है, जो storytelling में entrepreneurs इस्तेमाल कर सकते हैं, and it works actually. Okay, now it's time for a small activity. Not just activity, but the interaction. You can see it on your screen. So you can choose a product or any idea you admire. इसमें कुछ examples देते हैं, Ola या Paytm या कोई Tesla या Amul या कोई भी. Now tell the entrepreneurial story of that product using the problem, solution and vision framework. अभी हमने discuss किया पिछली slide में कि problem क्या होगी और solution बताना और फिर उसका एक लॉन्गर रन में विजन सामने रखना कि विजन क्या है. इस कॉन्टेक्स्ट में आप कोई भी प्रोडक्ट या आइडिया ले सकते हैं और उसकी एंटरप्रेन्योरियल स्टोरी क्लास के साथ शेयर करिए. तो सोचिए थोड़ी देर. आई विल गिव यू 30 seconds to think, I think. Then you can come up with what you have identified. Okay. Yes, anybody want to share this within this framework, problem, solution, vision, anybody? कोई शेयर करना चाहेगा? किसी ने कुछ ऐसा डिजाइन किया अभी, किसी प्रोडक्ट, किसी आइडिया के बारे में जो आपको पसंद हो, जिसको आप जानते हो? Dr. Updesh, Dr. Girish, any one of you is there? Santosh, Dr. Reena, anybody? जैसे सर अमूल है जी. अमूल में भी उसको कैसे कह सकते हैं केमिकल फ्री है, उसकी भी प्रॉब्लम है ना. मान लो पास्चराइजेशन होता है जी. फिर उसका प्रिजर्वेशन होता है जी गिरीश जी. 90 days के लिए, उसके लिए. जी जी जी. तो मान लीजिए वो भी प्रॉब्लम है, उसका उस तरह की क्वालिटी और टेस्ट नहीं रहता है. जी. तो अमूल ने क्या सॉल्यूशन दिया उसका? अमूल ने तो मान लो कोई सॉल्यूशन दिया नहीं उसका जो है. वही मैं कह रहा हूँ, चूज मतलब एनी प्रोडक्ट. या ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिखा था ताकि चूज एनीथिंग, कोई भी जिसमें आपको दिख रहा हो कि एक प्रॉब्लम उन्होंने बताई हो और उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट किया हो,
और उस पे एक विजन पर बात की हो कि हम इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं या हम यूथ को यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं, ये हमारा विजन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो ऐसा नेचुरल मिल्क है उसकी क्वालिटी कैसे मिले? नेचुरल मिल्क, हाँ ये एक प्रॉब्लम है जो कोई भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सॉल्यूशन क्या देंगे उसके लिए? आप अपने सॉल्यूशन बताइए गिरीश जी। उसमें सर बड़े बड़े डेयरी फार्म खोले जाएं जी जिसमें एनिमल्स रखे जाएं, जी काव बफेलो। जी। या फिर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाए अर्बन पॉपुलेशन को ऐसे डेयरी फार्म्स के साथ। जी सर। आप एक नेटवर्क बिल्ड कर सके जो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपके आइडिया की वजह से, आपके सोल्यूशन की वजह से वो नेटवर्क कनेक्ट कर दे। तो जी जैसे सर। आपने बताया, प्रॉब्लम इज नेचुरल मिल्क एक्चुअली, because the consumption of milk is very high in India and the production is very low. जी सर। एग्जैक्टली है, ज्यादातर लोग सिंथेटिक मिल्क पी रहे हैं, एक बड़ा मसला है ये। जी सर, सिंथेटिक मिल्क पी रहे हैं। एग्जैक्टली। अब वो सोल्यूशन आप उसका बता रहे हैं, तो कनेक्ट डेयरीज विद डायरेक्टली विद सिटीज। जी सर। जहां जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी XYZ सिटी में या स्टेट में काम कर रहे हैं, और Sir, विजन same क्या thing है? about, या प्लीज। यस मैम। sir, same thing about vegetables and fruits also. Organic farming में भी encouraged. और जैसे कि अर्बन लोगों को ही बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि हाइब्रिड और ये सब इतने सारे केमिकलाइज्ड यूज करते हैं और हेल्थ हैजार्ड्स उससे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लेसेस लैंड को आइडेंटिफाई करके स्पेशली फॉर उसमें इसी तरह का क्रॉप्स वो करे ताकि अर्बन लोगों को वो सप्लाई हो सके। रूरल एरियाज में तो डेफिनेटली आजकल एक कल्चर डेवलप हो गया है कि वो लोग अपने सेल्फ के यूज के लिए अलग से करते हैं एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक और फार्मिंग। फिर हमें लगता है कि इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। जी बिल्कुल मैम। तो ऐसे ही जैसे मैं एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। अ फ्यू डेज बैक आई वाज वाचिंग an advertisement of a product, not an advertisement, rather an explanation. तो वो जामुन जो होती है, हमारी जामुन से कैंडीज बना रहे हैं। प्रॉब्लम यही थी कि केमिकल फ्री कैंडीज नहीं होती और केमिकल है उसमें, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स हैं। तो पूरा प्रोसेस, उन्होंने सॉल्यूशन क्या दिखाया है कि डायरेक्टली जो इंडिया के रूरल एरियाज हैं वहां से जामुन के पेड़ से जामुन प्रोक्यूर किया जा रहा है और उनको रेफ्रिजरेट ना फ्रीज किया जा रहा है। बेसिकली फ्रीज करने के बाद उनसे वो कैंडीज बनाई जा रही है बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, और इतनी उनकी शेल्फ लाइफ है, उन्होंने टेस्ट किया। तो सोल्यूशन आपको दिया। प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे जाने क्या क्या खा रहे हैं। सोल्यूशन ये दिया कि एक हेल्दियर एक फ्रूट, जिसको हम सब बचपन से खाते आ रहे हैं, उस फ्रूट को कैंडी के फॉर्म। और विजन यही है कि जो हमें अपने कंट्री को या अपने सराउंडिंग को या अपने बच्चों को हेल्दियर प्रोडक्ट्स दे करके आगे बढ़ाना है, बड़ा करना, और ये कचरे से अपने बच्चों को बचाना है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हो सकता है। जैसे ओला ने क्या प्रॉब्लम देखी कि भाई कम यहाँ से आना जाना एक अपना बड़ा इशू था, एक मेजर कन्वेंस, एक मेजर प्रॉब्लम थी। सोल्यूशन क्या था कि उन्हीं टैक्सीज को यूज करके जो चल रही है एक नेटवर्क बना देना। आप इजीली बुक करिए और आपकी टैक्सी आपकी लोकेशन पर, और आप निकल जाइए। रैपिडो बना दिया गया, रैपिडो। एग्जैक्टली, रैपिडो। और विजन क्या है कि इंडिया में ट्रैवलिंग की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना और उसके साथ साथ कि ट्रैफिक को भी कंट्रोल रखना। कि वही एग्जिस्टिंग गाड़ियों की बात हो रही है, कुछ नया लॉन्च नहीं किया जा रहा है। राइट, सो दिस इज बेसिकली द फ्रेमवर्क। सो जैसे मैंने बताया कि स्टोरी टेलिंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन टूल इन एन एंटरप्रेन्योर्स टूल किट। ये सच बात है। बट वंस यू कैप्चर अटेंशन विद अ स्टोरी, ठीक है, यू ऑल्सो नीड टू परसुएड एंड कन्विंस नाउ। ओके, अच्छा, स्पेशली कब? जब आप इन्वेस्टर्स को पिच कर रहे हो। सो लेट्स मूव नेक्स्ट टू हाउ एंटरप्रेन्योर्स कैन क्राफ्ट परसुएसिव पिचेस। स्टोरी टेलिंग के बाद अब हम पिचिंग की तरफ बढ़ते हैं। ओके,
पिचिंग आप सब ये शार्क टैंक देखते हैं कहीं ना कहीं आप लोगों ने, अक्सर लोग जानते ही हैं इसके बारे में. So let's come to pitching. So every entrepreneur at some point they faces the moment of truth, convincing someone else to believe in their idea. ये जैसे moment of truth है, आपको convince करना है. So whether it's an angel investor और या फिर कोई venture capitalist है या कोई potential co-founder है, the ability to pitch clearly and persuasively, persuade भी करना है साथ में. So it often decides whether a startup lives or dies. In fact, many investors वो क्या कह रहे हैं कि we invest in people, not just ideas. So that's why learning the art of elevator pitch is critical. Okay? तो elevator pitch होती क्या है कि elevator pitch it's basically a 30-60 seconds presentation. जो भी आपका आइडिया है उसका एक छोटा सा presentation that is so clear and compelling that you can deliver it in the time it takes to ride an elevator. इतनी देर में आप जितने elevator में ऊपर जाके फंसेंगे इतनी देर में आप उसको पूरा कर सकते हैं. तो उसके core elements क्या होते हैं elevator pitch के? Obviously start with something that grabs attention, जिसको हम लोग hook बोलते हैं. यानी कोई भी ऐसी चीज जो attention अचानक, जैसे हम presentation ही हमें देना है, तो अच्छा presentation वो है जो एक hook से start होता है. आपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, क्लास में एक ऐसा हुक लेकर आए. तो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन ओनली मैंने क्या किया, सबसे पहले आपके सामने एक क्वेश्चन रखा था, फिर एक स्टैटिस्टिक्स शो की थी. तो बेसिकली उसको हम हुक बोलते हैं. तो स्टार्ट विद समथिंग दैट ग्रैब्स अटेंशन. जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं एक हुक किस तरह से कि डिड यू नो दैट ओवर 40% ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन इंडिया never reach consumers because they rot, सड़ जाते हैं before arriving in markets. हुक दिया आपने. अब आप आएंगे फिर प्रॉब्लम पे जहां पर आपको पेन पॉइंट बताना है. You have to state that. पेन पॉइंट क्या है कि farmers they lose income and consumers have to pay higher prices. अब बात आती है solution की. तो introduce your product or idea. So our digital platform directly connects farmers to consumers, cutting out middlemen and reducing waste. ये आप solution की बात कर रहे हैं. अगला स्टेप क्या होता है, वैल्यू प्रपोज करना होती है, वैल्यू प्रपोजिशन. उसमें आप क्या बताएंगे, why is it unique actually. अब उसमें आप क्या बता रहे हैं कि we save farmers 20% more income while giving consumers fresher and cheaper produce. और लास्ट में विजन या फिर कॉल टू एक्शन. अच्छा, कॉल टू एक्शन किसे कहते हैं मार्केटिंग के अंदर? कॉल टू एक्शन जो हम कराना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट बनाया है, मैंने कुछ भी बनाया तो मैं क्या चाहता हूं आप इस पे लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें, वो कॉल टू एक्शन, या खरीद लें, दैट्स कॉल्ड कॉल टू एक्शन. तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन क्या है कि लीव देम विद अ क्लियर आस्क और एस्पिरेशन. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहेंगे, वी आर सीकिंग लाइक अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स टू स्केल दिस अक्रॉस 10 cities in the next year, building a more sustainable food system. ठीक है, तो ऑलवेज कीप इट क्लियर, सिंपल एंड पैशनेट. तो हमारा ये एलिवेटर पिच मॉडल है जिसको आप एक हुक से स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, फिर क्यों आपका सॉल्यूशन यूनिक है उस वैल्यू को प्रपोज करते हैं, और फिर एक विजन बताते हैं या कॉल टू एक्शन के क्या एग्जैक्टली हमें चाहिए, अगले इतने हमें साल के अंदर इतनी सिटीज के अंदर पहुंचना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये हमारा एलिवेटर पिच मॉडल है. एंड लेट्स टॉक अबाउट सम कॉमन मिस्टेक्स जो एंटरप्रेन्योर्स कर देते हैं व्हाइल पिचिंग. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पहला आइटम है टू मच जार्गन. जार्गन बेसिकली कहते हैं टेक्निकल टर्म्स को. तो इन्वेस्टर्स may not understand several technical terms of your field. तो पैसा दे रहे हैं ना, वो exactly आपकी टेक्नोलॉजी को या आपकी इंजीनियरिंग को, must not be knowing the idea of the technology working behind that. तो टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं. दूसरा क्या होता है, lack of focus, talking about 10 different ideas instead of
वन कोर आइडिया। अब आपको एक कोर आइडिया के बारे में बात करना है, उसके साथ और चीजें लगी हो सकती है, मगर आप जब बीच में वो सारी चीजें ऐड करते चले जाओगे तो फोकस हट जाता है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। एंड अनदर वन इज ओवरलोडिंग विद डेटा। तो नंबर्स आर गुड, मैंने खुद कहा था आपसे, नंबर्स आर गुड, बट स्टोरी टेलिंग इज बेटर इन द फर्स्ट मिनट। नंबर बाद में लेकर आइए, कहानी शुरू कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा वीक डिलीवरी, तो स्पीकिंग टू सॉफ्टली और अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट और साउंडिंग अनश्योर, ये वीक डिलीवरी की वजह से भी आपकी पिचिंग हल्की पड़ सकती है, ठीक है। अच्छा, ये वीक डिलीवरी में जो हमने इश्यूज बताए हैं, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखते हैं तो उनमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। एंड लास्टली, नो क्लियर आस्क, सो नॉट टेलिंग द इन्वेस्टर व्हाट यू वांट, क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, पार्टनरशिप चाहिए, क्लियरली बात करनी, साफ बताना इतनी फंडिंग चाहिए, दिस इज व्हाट, ओके, नॉट टेलिंग देम। तो इफ यू आर नॉट क्लियरली आस्किंग, it will be a mistake in pitching. So quickly coming to example of a weak pitch, we can see we have a disruptive AI-driven blockchain-enabled solution for the agricultural value chain that leverages IoT for precision logistics. Too much jargon basically and no clarity. किसी को हो सकता है ब्लॉकचेन ही पता ना हो कि क्या होता है, या फिर IoT किसे कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या चीज है, या IoT की फुल फॉर्म क्या है, ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अब दूसरा हम आपको सेम आइडिया को दिखा रहे हैं स्ट्रॉन्ग पिच के फॉर्म में। यहाँ पर इसी बात को देखिए, घुमाकर कहा जा रहा है, वी हेल्प फार्मर्स सेल फ्रेशर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू अर्बन कंज्यूमर्स यूजिंग अ सिंपल ऐप, ensuring farmers earn more and consumers pay less. Same idea, but alphas alag alag hai. So you can see that same idea can be pitched both the ways. गड़बड़ कर देंगे तो वीक पिच आएगी, और समझ जाएंगे कि क्या भाषा बोलनी है, इन्वेस्टर को कैसे समझाना है। यानी शुरू में तो आपको जब पिच करेंगे तो कहानी सुनानी है। स्टोरी टेलिंग शुड बी स्ट्रॉन्ग, मैसेज क्लियर भी हो और परसुएसिव भी, ठीक है। आगे बढ़कर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे ड्रॉपबॉक्स का नाम आप सबने सुना होगा, क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। ओके, ड्रॉपबॉक्स डेमो वीडियो पेश इन 2007। चैलेंज क्या था कि क्लाउड स्टोरेज वाज न्यू, इट वाज एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एंड इट वाज हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सॉल्यूशन क्या किया उन्होंने, इंस्टेड ऑफ लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस, फाउंडर जो था उसके, ड्रू ह्यूस्टन, he made a short 3-minute demo video showing how Dropbox worked. पिच की हाईलाइट क्या थी बेसिकली, वो वीडियो जो है वो टेक कम्युनिटी में वायरल हो गया और ओवरनाइट लगभग 70,000 साइन अप्स होते हैं ड्रॉपबॉक्स में। और इम्पैक्ट क्या हुआ उसका कि ये ट्रांजैक्शन जो हुई ओवरनाइट, इसने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर दिया टू बैक ड्रॉपबॉक्स। ओके, तो टेक अवे हम इससे क्या कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समटाइम्स अ डेमो एक्सप्लेन्स बेटर देन 1000 words. Yes, it can work. ऐसे YouTube का एग्जांपल है। So early on, YouTube needed funding to scale video hosting, which was very expensive at that time. जब YouTube 2004-5 की बात है। पिच हाईलाइट क्या थी कि उनकी पिच बहुत ही सिंपल थी। उन्होंने क्या कहा, दिस इज द फ्लिकर ऑफ वीडियो। सबको पता था कि फ्लिकर इज अ फोटो शेयरिंग साइट। So the analogy, it clicked immediately with everybody. अच्छा, it's a Flickr kind of a thing, but for videos. Outcome क्या हुआ कि they secured investment with Sequoia Capital. अच्छा, बाद में Google ने, तो हम सब जानते हैं, उसको acquire कर लिया और 1.65 billion whopping dollars पे acquire किया। तो आप देख सकते हैं कि a simple analogy can make a complex idea instantly clear. These were the few examples I shared about this pitching and all. Okay, let's now move towards quickly. अगले स्टेप पर आते हैं हम लोग और बात करते हैं यहाँ आने के बाद just a second about internal communication and leadership. अगला, अब हमने आपसे बात की सबसे पहले स्टोरी टेलिंग के बारे में, फिर हमने बात की पिचिंग के बारे में, अब इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं।
मतलब वो क्या होता है इंटरनल कम्युनिकेशन, मतलब हमारी जो टीम है बेसिकली, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन विद देम इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप, एवरी वर्ड ऑफ द फाउंडर्स मैटर्स। ओके, ये कल्चर की, मोरल की, प्रोडक्टिविटी की, इसकी टोन को यही चीज तो सेट करती है कि आप क्या कह रहे हैं। So unlike large corporations with formal HR and communication systems, startup किस पर rely कर रहे हैं? Simply direct communication from the entrepreneur. और अगर हम बात करें की पर्पसेस की, तो की पर्पसेस क्या है? ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, और मोटिवेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और मोटिवेशन होगा तो एम्प्लॉयज जो है हमारे इंस्पायर होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आप सब जानते ही हैं कि छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट बड़े बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए तो की आइडिया यही है कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट ओनली द चीफ मार्केटर्स आउटसाइड, नो, दे आर आल्सो द चीफ कम्युनिकेटर्स इनसाइड देयर टीम आल्सो। ठीक है, अंदर भी उन्हीं को सबसे ज्यादा बात करनी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, मोटिवेशन और आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी इसके हमें और डिस्कस करने की जरूरत नहीं, टाइम भी हमारे पास कम है, 10:15 ऑलमोस्ट हो रहे हैं, तो क्विकली इसको हम स्किप करके डिटेल इसकी आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। इंटरनल कम्युनिकेशन में किस तरह के, वैसे लीडरशिप के स्टाइल कई सारे हैं, आप लोगों ने जरूर पढ़े होंगे, ऑटोक्रेटिक है, बेनेवोलेंट है, डेमोक्रेटिक है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट हम बात कर रहे हैं लीडरशिप स्टाइल इन इंटरनल कम्युनिकेशन। सो वी हैव दिस विजन ड्रिवन इंस्पायरिंग कम्युनिकेशन। देखिए इसमें एग्जांपल दिया है कि स्टीव जॉब्स ने बेसिकली इसी को अडॉप्ट किया। तो जॉब्स बेसिकली वाज नोन फॉर weaving a sense of purpose into every single message. His internal talks जो अंदर बात हो रही है, it often stresses that employees were not just making gadgets, no, they were changing the world. लोगों को ये समझाया जा रहा था। Okay, storytelling की पावर क्या थी कि he framed even technical projects as part of a grand narrative. Apple stood for simplicity, creativity and rebellion against the ordinary. उसका एम्प्लॉइज पर इम्पैक्ट क्या होता है कि वर्कर्स दे फेल्ट पार्ट ऑफ अ लार्जर मिशन, many reported feeling deeply motivated, willing to put in extra effort because they believed their work had global significance. तो उसके लिए वो तैयार है लंबा काम करने के लिए। ठीक है, तो स्टीव जॉब्स ने क्या किया, he used internal communication as a way to create emotional buy-in. सिर्फ टास्क अलाइनमेंट नहीं, बल्कि उनको इमोशनली घेर करके लेके आया है। ठीक है, जैसे जब पहला मैकिंटोश वो बना रहे थे, कंप्यूटर डेवलपमेंट हो रहा था उसका, तो जॉब्स ने क्या किया, ही कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड द टीम दैट दे वर क्रिएटिंग अ कंप्यूटर फॉर द रेस्ट ऑफ अस दैट वुड डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी। ये विजन दिया जा रहा था लोग। ठीक है, और उनकी स्टोरी टेलिंग की अगर बात करें तो लीडरशिप इस मामले में आज भी बहुत स्ट्रांग है। हर चीज को नैरेटिव में लेकर के आते हैं। प्रोडक्ट का छोटे से छोटा फीचर भी होता है तो उसको स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में आपको बता दें। खैर फिलहाल हम लीडरशिप स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, तो इसी पर आते हैं। दूसरा हमने एग्जाम्पल दे रखा है आपको यहाँ पर एलॉन मस्क का, जो कि काफी डायरेक्टिव और अर्जेंट और ब्लंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन स्टाइल यूज करता है। सो ही इज बेसिकली फेमस फॉर हिज नो नॉनसेंस एंड एफिशिएंसी फोकस्ड कम्युनिकेशन. Even his emails and his memos, they often go viral because of their clarity and intensity. ठीक है, एक बार उसने टेस्ला एम्प्लॉय को एक नोट लिखा, एक मेल किया, बेसिकली कम्युनिकेशन शुड ट्रैवल वाया द शॉर्टेस्ट पाथ नेसेसरी टू गेट द जॉब डन, नॉट थ्रू हायरार्की. सबसे शॉर्टेस्ट, हायरार्की फॉलो करने की जरूरत नहीं, काम जल्द से जल्द होना चाहिए। तो बेसिकली उसका इम्पैक्ट क्या है एम्प्लॉइज पर, कि वहां पर ये डिफरेंट स्टाइल है, ये क्रिएट कर रहा है हाई प्रेशर और हाई परफॉर्मेंस एनवायरनमेंट। एम्प्लॉइज को पता है कि एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्टेड है, कोई एम्बिग्विटी है ही नहीं इस केस में। थोड़ा सा मसला क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रेस वगैरह और बर्नआउट बढ़ सकता है ऐसी लीडरशिप स्टाइल में, अगर आप रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज को टाइम टू टाइम, या फिर उनको सपोर्ट प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, एक 2018 में काफी फेमस हुआ था, एलॉन मस्क ने क्या किया,
मिडनाइट एक ईमेल भेजता है टू रैम्प अप मॉडल 3 प्रोडक्शन एट ऑल कॉस्ट्स। तो उसका अर्जेंट और अनकम्प्रोमाइजिंग कम्युनिकेशन स्टाइल। तो दीज आर द टू स्टाइल्स जो हम लीडरशिप के इंटरनल कम्युनिकेशन में यहाँ डिस्कस हमने किए हैं। एक विजन ड्रिवन है, इंस्पायरिंग है, एक डायरेक्टिव, अर्जेंट एंड ब्लंट कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से यूज किए जाते हैं और इनका बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बोथ दोनों ही लीडर्स ने एक चीज डेमोन्स्ट्रेट की थी, वो क्या कि इंटरनल कम्युनिकेशन इट्स जस्ट नॉट अबाउट पासिंग इंफॉर्मेशन, इट्स बेसिकली अबाउट शेपिंग कल्चर। दोनों के स्टाइल अलग अलग है लेकिन कल्चर दोनों शेप कर रहे हैं अपने अपने स्टाइल। तो यही बेसिकली इंटरनल कम्युनिकेशन का मेन मोटिव है। इंफॉर्मेशन तो कागजों से भी पास हो जाती है सिंपली। तो थोड़ा सा टाइम कम रह गया है हमारे पास। आई वांटेड टू आस्क यू गाइस पीपल दैट think about your own teaching or leadership role and how does your communication style affect the culture in your classroom or department. अगर आप एक स्टार्टअप रन करेंगे तो किसकी तरफ ज्यादा लीन करेंगे, पहले वाले विजन ड्रिवन स्टाइल की तरफ या डायरेक्टिव और अर्जेंट स्टाइल की तरफ? तो अगर कोई जल्दी से इसको आंसर करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कस्टमर सेंट्रिक कम्युनिकेशन। ठीक है, व्हाई कस्टमर सेंट्रिक कम्युनिकेशन मैटर्स? वेल many startup fail not because the product is bad, okay, but because the message does not connect with the customer. So entrepreneurs, they often speak in their language, उनकी language technical, financial, features driven, और customer they respond to their own language. उनकी language क्या है? Needs, emotions and benefits. ठीक है, जैसे entrepreneur की language की अगर हम बात करें, जो नहीं समझ पा रहा है उसने क्या लिखा? Our app uses AI powered geolocation algorithms. अब कस्टमर की लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करें उनको समझाने के लिए, क्या लिखेंगे? Our app helps you find the nearest doctor in minutes when you need it most. ठीक है, तो customers they don't buy features, basically they buy solutions to their problem, right? Okay, let's talk about some emotional triggers in communication. So customers make decision not just rationally but emotionally. So entrepreneurs they should identify the fear or pain कि क्या problem उनको frustrate कर रही है, daily किस बात से परेशान है. Also desire या उनके aspiration. Desire क्या है या aspiration क्या है? Imagine getting medical help in just 5 minutes through your phone. और ट्रस्ट किस तरह से आप उनमें पैदा कर सकते हैं? तो ट्रस्ट और सेफ्टी का ट्रिगर कि आप क्या मेंशन कर सकते हैं कि ओवर 10,000 फैमिलीज ऑलरेडी रिलाइड ऑन अस एवरी वीक. व्हेन पीपल आर यूजिंग इट और टेस्टिमनी मिल रही है तो ट्रस्ट भी आना शुरू हो. ऐसे ही हम बात करते हैं कि वैल्यू प्रोपोजिशन कम्युनिकेशन से कैसा होता है. तो एट द कोर ऑफ कस्टमर सेंट्रिक मैसेजिंग इज द वैल्यू प्रोपोजिशन. एक क्लियर स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन करता है कि हाउ व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व, हाउ यू सॉल्व इट एंड व्हाई यू आर डिफरेंट. तो बताया था कि यूनिक एडवांटेज आपकी क्या है. तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने शेयर किया है स्क्रीन पे अगर आपको विजिबल हो. इफ अ टारगेट कस्टमर हु फेस सर्टेन प्रॉब्लम, आवर प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड्स दिस सॉल्यूशन अनलाइक द कंपटीशन. ठीक है, जैसे हम बात करें उबर की, तो for people who need quick and affordable rides, ये problem customer के लिए. Uber and unlike taxis, it's cashless, transparent and trackable. ये differentiation है कि बाकी taxis से किस तरीके से Uber अलग है. ठीक है,
So always translate technical features into customer benefits. Because customer, they care about outcomes, not just inputs. Okay, a clear, relatable, and emotionally resonant communication builds trust and drives adoption. Okay, जल्दी से हम आगे बढ़कर अब बात कर लेते हैं नेगोशिएशन और नेटवर्किंग की। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन कितना ज्यादा जरूरी है when you are negotiating with anybody in the business or you are making certain networks. So entrepreneurship is not just about ideas, it's about people and relationships. Okay, the founders, they are constantly negotiating. किसके साथ? With investors, किस लिए? For funding. With customers, किसके लिए? For trust and adoption. With employees, किस लिए? For loyalty and effort. And with partners and suppliers, किसके लिए? For negotiating on favorable terms. So likewise, negotiating is how entrepreneurs open doors to opportunity they could never achieve alone. ठीक है? Great entrepreneurs are often great communicators in both negotiating and networking. अब हम बात करें अगर negotiation के 3 principles की, वैसे negotiation में और भी पूरा process है. इस context में हम 3 principles की बात करते हैं कि number 1, listening first. So true negotiation begins with listening. For example, instead of pitching your product immediately to an investor, पूछिए आप, what industries do you find most promising this year? इससे क्या होता है जब आप सुनते हैं दूसरे की, तो दूसरी साइड की needs, fears, priorities सब आपको हल्के हल्के मालूम चलना शुरू होता है. दूसरा प्रिंसिपल है framing the offer. So entrepreneurs must how they frame their proposal changes how others perceive it. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है आपको, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वीक फ्रेम क्या कह रहे हैं कि वी वांट यू टू इन्वेस्ट ₹50 लाख. दिस इज अ वीक फ्रेम. स्ट्रॉन्ग फ्रेम क्या होगा? दूसरा एग्जांपल देखते हैं. फॉर जस्ट ₹50 लाख यू विल बी एन अर्ली पार्टनर in a 500 crore opportunity. The same request, right? But with a shift from cost to opportunity. Cost से हम कहाँ लेंगे उसको उठा करके opportunity की तरफ. तो तीसरा principle है win-win approach. Win-win approach के entrepreneurs must avoid zero-sum thinking. Win-win का मतलब क्या होता है कि दोनों sides को लगे कि हम कुछ जीते हैं. तो example जैसे हमने आपको यहाँ दिया है कि offering early employees not just salary, but equity shares. So they feel like co-owners of the success. Okay? तो याद रखिए कि अगर एक साइड इन नेगोशिएशन में 2 साइड है, अगर हमारी दूसरी साइड को उसको लगा कि हम हार गए, they feel defeated, the relationship will not last. Okay? A businessman या entrepreneur, they always should think about maintaining relationship with other people and other businesses. Fine, so these are the basic principles of negotiation. And let's talk about networking. So it's not simply about collecting business cards. It's about building meaningful relationships. Okay. Successful entrepreneurs, they use networking events to share their vision with passion. और क्या है भाई? दूसरों के challenges को सुनेंगे और देखते हैं वो कैसे उनकी help कर सकते हैं. And they try to build a reputation for trustworthiness and generosity. Networking tips आपकी स्क्रीन पर हैं कि always have a 30-second introduction ready, यानी self elevator pitch जिसको मैंने बताया था कि जल्दी से आप किसी को बता सकें अपना आइडिया. Ask more question than you answer. जितनी curiosity बढ़ेगी उतने connection आपके बढ़ते चले जाएंगे. And follow up with a personal message, not just nice meeting you. Okay? कुछ personal message दीजिए किस इस तरह के how to connect with that person. So these are your networking tips. तो छोटा सा केस ले लेते हैं. हालांकि ओला तो अब एक फेलियर कह सकते हैं हम, अभी सक्सेसफुल स्टोरी नहीं रही, बट ओला और उबर के फाउंडर्स की अर्ली नेगोशिएशन के बारे में बात करते हैं. तो भावेश अग्रवाल और अंकित भाटी, दे वर द फाउंडर्स ऑफ ओला. तो शुरू में उन्हें ड्राइवर्स को कन्विंस करना था to join the platform that was simply unknown and untested. So drivers were skeptical about this, skeptical about apps, about payments, about reliability. Founders ने क्या किया? They negotiated by listening to drivers' concern.
जैसे इनकम सिक्योरिटी, ट्रिप वॉल्यूम कितना होगा, एंड दे फ्रेम्ड ओला एज अ वे टू इंक्रीज अर्निंग्स, नॉट रिप्लेस एक्सिस्टिंग। कि आपका काम छूटेगा नहीं बल्कि आपकी अर्निंग्स और बढ़ेंगी। ठीक है, तो उनका जो नेगोशिएशन था वो यही था, उन्होंने ये समझाई बात कि हाउ दिस इज गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर बास्केट ऑल्सो। सिमिलरली उबर में हम देखें, अभी तो ही इज नॉट द सीईओ, ट्रैविस कैलेनिक, सो ही फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स इन अर्ली ईयर, जब शुरू किया। अच्छा, और बात ये थी कि पैसे की खाली बात नहीं थी, वहां मसला अर्बन सिटी कंजेशन का भी था एंड ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी का। तो उबर ने क्या किया, उबर ने सोल्यूशन क्या लाया कि सिटी कंजेशन भी इससे कम हो, क्योंकि हम नई गाड़ियां ऐड नहीं कर रहे हैं और ड्राइवर्स इससे ज्यादा अर्न करेंगे और कस्टमर्स का टाइम सेव। तो फाइनली दे वर एबल टू नेगोशिएट, सही बात और सही एलिवेटर पिच के साथ वो नेगोशिएट कर पाए अपने जो इन्वेस्टर्स थे उनको। और लास्टली अब हम जल्दी से आ जाते हैं, हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट जा रहा है, हम बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन की। तो दिस मैटर्स अ लॉट इन टुडेज एरा। In the digital first world, entrepreneurs cannot afford to stay invisible. Investor, customer, potential employees, and even regulators, सारे के सारे, they search online before meeting a founder. आपको आने से पहले, वो मिलने से पहले आपके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। So your digital footprint, it becomes your first impression. Therefore, communication on digital platforms is not just optional. It's a strategic tool for visibility, credibility and trust. ठीक है, तो की प्लेटफॉर्म्स एक प्रोफेशनल, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, भाई आप सब जानते हैं लिंक्डइन के बारे में, एक्ट्स एज अ डिजिटल रिज्यूमे और एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म की तरह से। यहाँ पर अपने माइलस्टोन के लोग अपडेट शेयर करते हैं, टीम ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, कस्टमर कितने हमने बना लिए, आर्टिकल्स अपने विजन को रिफ्लेक्ट करने के लिए आर्टिकल्स पोस्ट किए जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स के, इंडस्ट्री पीयर्स और मेंटर्स के साथ नेटवर्किंग हो। सिमिलरली आपको स्पीड एंड इन्फ्लुएंस दिखाना है तो यूज एक्स, या जिसको हम ट्विटर कहते थे, क्विक अपडेट्स, इंडस्ट्री कमेंट्री, थॉट लीडरशिप, कहाँ पे डाली जाती हैं सारी चीजें आ रही हैं ट्वीट्स के अंदर। ठीक है, मेनी इन्वेस्टर्स, जर्नलिस्ट एंड स्टार्टअप एंथुजियास्ट, दे फॉलो फाउंडर्स ऑन ट्विटर। ठीक है, तो स्पीड और इन्फ्लुएंस के लिए आप ट्विटर यूज कर सकते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, एंड रेस्ट ऑफ द सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम फॉर स्टोरी टेलिंग, बिकॉज ऑडियंसेस दे ऑलवेज रिमेंबर, दे एंगेज मोर विद स्टोरीज देन विद एडवर्टाइजमेंट्स। एंटरप्रेन्योरियल स्टोरी टेलिंग कुड इंक्लूड शेयरिंग योर जर्नी, कि ये प्रोटोटाइप हमने छोटे से गैराज में कैसे शुरू किए, शेयरिंग द इम्पैक्ट दिस प्रोडक्ट हेल्प द रूरल स्टूडेंट अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, एंड sharing the vision. So we imagine a world where no one goes thirsty, no one goes without a computer. So that's basically your vision. ठीक है, so stories क्या करती हैं, they humanizes the startup, और उसकी वजह से startup relatable लगने लगा। Fine. मैंने आपके लिए कुछ एक क्वेश्चन जरूर रखा था, बट अभी हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। And I'll talk about the some conclusion and takeaways. Well, entrepreneurs succeed when they can craft and share a compelling narrative, not just about their product, no, but about their vision and impact. Okay, and success always depends on clarity, conciseness, and conviction. A 60-second pitch can open or close the door, right? Or the way a founder talks to their teams shape the startup culture. किस तरह से आप बात कर रहे हैं, वो कल्चर बनता है। Okay, and speaking in the customer's language, उससे क्या है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉयल्टी होती है, और entrepreneurs win when they listen, frames offer wisely, and create win-win partnership. And of course, talking about digital branding in today's world, your online presence is your first impression. So LinkedIn, Twitter, and other social media platforms, they build credibility and visibility.
Okay, so हमारे takeaways की अगर हम बात करें तो yeah, these are the takeaways. Storytelling builds emotional connection. Persuasion से आप investor और customers को जीत सकते हैं. Internal communication culture को shape करता है. Customer language beats jargon. Negotiation और networking आपको allies create करके देते हैं. Digital branding builds trust and visibility. So with this, I think this whole lecture, it comes to an end, and it's also time to end this video. So thank you very much for your patience listening. I hope कि आपकी already existing vast amount of knowledge में शायद मैं कुछ नया add कर पाया हूँ. If this refresher course is offline, would have been offline, तो हमारा ये पूरा सेशन बहुत मजेदार होता, बहुत इंटरैक्टिव होता. ऑनलाइन होने की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम करना चाहते थे वो आप लोगों के साथ वो डिस्कशंस नहीं कर पाए. तो we'll see to it. Thank you very much for your listening. Any inputs, any thoughts from your side? कोई कुछ कहना चाहता है before we are ending this? I am receiving your comments. Thank you for such nice comments. Anything anybody want to say? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Girish ji. Thank you so much, sir, for your nice session. Thank you, sir. Thank you, Seema ma'am. Thank you, Desh sir. Sir, thank you so much. Thank We you, had sir. a great time. Thank you And, very much, sir. we come out with new Thank you, sir. ideas. Thank you. तो उम्मीद है मुझे कुछ ना कुछ ऐड आपके नॉलेज में हुआ होगा. आज कोई ना कोई तो नई चीज आई होगी जो आपसे पहले शायद डिस्कशन में ना आई. तो with this I'm ending this meet now. Hope to see you people in future. किसी not in a virtual space but in a live space कहीं बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, बहुत सारे आइडियाज और डिस्कशंस करेंगे बहुत सारी चीजों पर. So till then, I'd like to take your leave and a very good day to all of you. Thank you very much for joining. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir.